ایک چینل والا کہے گا مجھے تو یہ آرڈر آیا ہے، تو اور کیونکہ آپ اپنی روزی ڈیجیٹل میڈیا سے کما رہے ہو، وہ کہے گا مجھے اپنی روزی کی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ. تو ہم اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں. اس وقت شام کے تقریباً 7 بجنے کو ہیں اور یہاں پر پنجاب پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے. یہاں پر تحریک انصاف کے لوگ بھی آپ جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. کل آپ کے گھر میں ریڈ بھی ہوں گے، آپ کس عدالت میں جائیں گے؟ آپ کس عدالت میں جائیں گے؟ انصاف تو ملنا نہیں ہے. تو یہ صرف تو پھر آپ ڈر کے رہیں گے، آپ نے خوف زدہ رہیں گے. آپ جیسی پولیس والا آپ کرو گے، اس کو کہتے ہیں غلامی. ہم تو گولیوں کے لیے تیار ہیں، ہم جیل کے لیے تیار ہیں. تو یہ انڈوں سے تو نہیں کچھ ہوتا. اور اگر آپ کہو گے کہ جی سوشل میڈیا والوں کو وہ بائیکاٹ کروا دو ان کا، اور پھر کہو جی سوشل میڈیا والے فون لائے ہیں، ان کے فون اٹھا کے سب کے چھین لیے. جو بیچارے وہ جو لڑکے یہاں 2 سال سے، آپ بھی ان کو جانتے ہو، وہ بیچارے لڑکے، وہ ان کی روزی ہے یہ. وہ کئی دفعہ آپ کو پتا میں یہاں سے جانے لگتی ہوں، وہ کہتے ہیں پلیز انٹرویو دے دیں، ہم اسی پہ تو گزارا کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم ان کو دے کر چلے جائیں تو مین اسٹریم میڈیا والے کہتے ہیں جی ہمارا سارا دن گزر گیا یہاں، اور آپ لوگوں نے دیکھیں گلا کرتے ہیں کہ آپ نے بات نہیں کی. تو ہم تو یہ بھی خیال ان کا خیال کرتے ہیں کہ وہ اتنا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ ہمارا پیغام جو عمران خان کا ہوتا ہے وہ لوگوں تک ان کی وجہ سے پہنچتا ہے. تو مجھے تو آج بڑا دکھ ہوا کہ 2 سال اتنے اچھے گزر رہے تھے، آرام سے ہم آتے تھے، کچھ نہ میڈیا والے بلکہ کہتے تھے آپ جلدی پیغام دے جائیں، ہم ان کے لیے جلدی کر دیتے تھے. ہم تو سارے اچھا تھا. اتنی شیطانی پچھلے ہفتے کروا کے مجھے اتنا دکھ ہوا. میں حالانکہ ان کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اس دن، کیونکہ آپ نے بڑی محنت کر کے مجھے بات نہیں کرنے دی میڈیا سے، جب وہ انڈا مروایا تھا آپ نے مرغیوں سے، تو جب وہ میں نیچے نکل رہی تھی، آپ نے پوری محنت کر کے مجھے میڈیا سے بات نہیں کرنی. میں اسی وقت ان کو کہہ دیتی کہ نہ فکر کریں، ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا. لیکن آپ نے بات نہیں کرنے دی، اور پھر آپ نے ٹی وی پہ چلا دیا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے. پھر آپ نے آفیشل سے چلوایا، پولیس کی نہیں آئی تھی، اسی کے اندر آیا. کتنی غلط بات ہے. نہ سچ ہے نہ کہ جھوٹ ہے، جھوٹ بلوا رہے ہیں. کیا ضرورت تھی جھوٹ بلوانے کی؟ ہم نے آپ کا اتنا لحاظ کیا، ہم نے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے نہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں آپ کا، آپ ہمارا کرتے ہو. تو یہ اس دن کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ ہماری آپ اپنی پولیس ہو. ہم ہمیشہ آپ کہتے ہو، آپ اینڈ میں آ کے یہ 2 گھنٹے کہتے رہتے ہیں، ہم اٹھ ہی جاتے ہیں ایونچولی، اسی لیے کہ دیکھو ان بیچاروں نے گھر جانا ہے، اس لیے اٹھ جاتے ہیں نا. تو اس لیے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا اس دن کہ دیکھو یہ انڈے مروا کے. اس دن کوئی بھی پولیس نہیں کھڑی ہوتی، اس دن پولیس بھی آ کے اتنی جمع تھی، تیاری تھی سب کی انڈے کے لیے. دیکھو بیٹا، انڈے کر لو، گولیاں کر لو، اینڈ میں گھر جا کے آپ ہی لوگوں کو شرم آئے گی کہ ہم یہ کیا کر رہے تھے. صرف عمران خان کی آواز نہ باہر پہنچے، یہ ڈیوٹی ہے کہ عمران خان کی آواز نہ پہنچے. ہم عمران خان کی آواز 2 ہفتے سے ڈسٹرب کی بھی ہے نا 2 دفعہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. سب کو عمران خان کا پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں. پیغام پہنچ جائے گا. سوشل میڈیا کے آپ نے فون لے لیے، کوئی بات نہیں، ہم 2 اور طریقے ڈھونڈ لیں گے. ہم یہاں ویڈیوز بنو کے سوشل میڈیا پہ اپنے میں اکاؤنٹ سے اب لگا دوں گی. ہم بھی ہم اس کا پیغام انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے. یہی ہمارا کام ہے، ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کا پیغام پہنچے. لگائے جا رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے موو کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ نہیں، ملاقات نہیں کرنی. تو اب آپ جانے لگی ہیں یہاں پر؟ نہیں ادھر ہی بیٹھے ہیں. بیٹھے ہیں آپ؟ بالکل، کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ جیسے میڈیا میں پھوٹ ڈالنا، بچوں کی اور میڈیا کی لڑائی کروانا، یہ شیطانیاں تھیں. آپ کو پتہ ہے بچے جذباتی ہوں گے، جان کے آپ اٹیک کرو گے، آج انڈا ہے کل پتھر مار دیں گے. ہاں، تو بچے گھبرا گئے. کئی بچے یہاں کھڑے ان کو روک بھی رہی تھی کہ بھی نہ کریں ایسے کہ بچے، لیکن وہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی آج انہوں نے ہمیں پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف آج ہم نے انڈا مارا، ابھی آگے دیکھنا. جان کے اشتعال کیا دے رہے ہیں؟ اب پیچھے کسی کو کہہ رہا ہے، وہ یہ سن کر آگے اور جذباتی ہو گئے. جب دیکھیں اشتعال ڈلوایا جا رہا تھا، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، انڈے سے تم کیوں گھبرا رہے ہو. لیکن ان کو یہ فکر تھی کہ کچھ اور نہ، یہ اگلی دفعہ پتھر، ان کو رومرز پھیلاتے ہیں نا اشتعال ڈلوانے کے لیے.
सारा कुछ इश्तिहाल दिलाने के लिए किया था, फिर ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया बंद कर दे कि इमरान खान का मैसेज। लेकिन देखें और भी बड़े मीडियम्स हैं, वो कर लेंगे, हमें उसका कोई इशू नहीं है, हम कुछ कहना दे चाहेंगे देंगे। यहाँ पे पुलिस क्या बातचीत हुई है, पुलिस से आपकी बातचीत हुई? हाँ, मुलाकात मैडम नहीं करने दी जाएगी, तो आप पाकिस्तानी हैं, आइन और कानून किधर है, अदालतें आर्डर देती हैं, आपकी मुलाकात नहीं होती। बस यही हालात है कानून का। आप समझती हैं अदालतों से कोई आइन और कानून या कोई मुल्क में रह हम गए? तो कोशिश करेंगे ना, हाँ। हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे आईनी हक हैं, जो हमारे हमारे पास ये राइट्स हैं, वो तो हम कर रहे हैं ना। ये हमारा राइट है जो हम यहाँ बैठे हैं, ये हमें आइन हक देता है कि अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। आइन ने हमें ये पूरी इजाज़त दी है, हम आइन के मुताबिक हैं, यहाँ बैठे हैं ना, ये हमें पूरी आइन के मुताबिक इजाज़त है कि हम अपने हक के लिए एहतजाज कर यहाँ सकते पे हैं। गिरफ्तारी भी हो सकती है, अब आप पहले भी गिरफ्तार होती हैं, आपको छोड़ दिया जाता है जाके दूर कहीं चक्री के पास, तो अब दोबारा गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं? तो मेरे पे अरेस्ट वारंट है, तो एक गिरफ्तार कर लें और क्या करें, मतलब उससे अगर इनके दिल को तस्कीन पहुंचती है तो कर लें। हम कितनी आप तैयार मेरे हैं? पे देखें 80 FIR हैं, एक में बेल लेती हूँ तो दो में गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये तमाशा लगाया हुआ है, कोर्टों में भागे फिरो, तो अब ये नामजद कर देते हैं, फिर हम फिर जाके बेलें लें। मैंने इनको कह दिया था लॉयर्स को, मैंने कहा मैंने और नहीं। हाँ, तो ये तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप यही मैं आपको कह रही हूँ, कितनी कितनी सारे हमारे पे पर्चे दहशतगर्दी के हैं सारे। तो मैं यही कह रही हूँ, कितनी हम बेलें लेते फिरेंगे, ये मजाक, कानून का भी मजाक है। ये क्या चाहते हैं, एक दफ़ा जो अरेस्ट करना कर लें, हमें डर नहीं रहेगी। जो बेल लेने का ये समझ रहे हैं, शायद इतने घबरा गए हैं कि भागे फिर रहे हैं कोर्टों में। आप बताएं कि वो वाला जो उस कल जो वाकया हुआ था, ये उस पे गिरफ्तार करें, फिर सारी दुनिया को बताएं कि हमने क्यों गिरफ्तार किया। अभी आपसे आके पुलिस वालों ने क्या बात की? कहते हैं चले जाएं, क्यों, हम क्या कर रहे हैं कि हम चले जाएं, किसी पे कुछ कोई चीज़ है, क्यों बैठे, जब तक हम बैठे। पुलिस देखें कितनी दूर उन्होंने हमें खड़ा किया हुआ है अडियाला रोड पे, तो क्या अब हम यहाँ पे भी नहीं, क्या पाकिस्तानी अपने मुल्क में इनकी इजाज़त से अब जाएंगे, पुलिस की इजाज़त से? क्या हम पुलिस की इजाज़त लेंगे कि आप आज हमारे साथ हो रहे? याद रखें, मीडिया वाले खड़े हैं, सबको बता दें, आज तो आप कह रहे हैं ना कि ये इनके साथ हो रहा है, और पुलिस आके 10 पुलिस वाले अपने लोगों को अपने घर के बाहर भी आप खड़े होंगे तो कहेंगे आज हमने फैसला किया कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। ये हो सकता है ना, कहीं पे भी हो सकता है कि आज हमें दिल नहीं कर रहा। अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं ना, हर इलाके का पुलिस वाला आपके घर के बाहर खड़ा होगा कि आज मेरा नहीं दिल कर रहा तुम यहाँ खड़े हो, क्यों ना करे। आइन जब नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर हर एक की मर्जी होगी। कल आपके घर में रेड भी होंगे, आप किस अदालत में जाएंगे, आप किस अदालत में जाएंगे, इंसाफ तो मिलना नहीं है। तो ये सिर्फ, तो फिर आप डर के रहेंगे, आपने खौफजदा रहेंगे, आप जैसी पुलिस वाला आपको रोके, इसको कहते हैं गुलामी। क्या फैसला है? आप यहाँ ही बैठेंगे? हाँ जी, हम क्या, गिरफ्तारियां करेंगे जिस तरह पहले पिछले हम तो अपनी आगे सामने खड़ी होगी। अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम मैं और मेरी बहनें, बाकी सबकी अपनी जिम्मेदारी है। हम आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। वो आपके साथ आए हैं लोग, हज़ारे जब कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन इमरान खान के साथ। सारे अपने दिल से आए हैं। और मैंने तो पिछली दफ़ा जब ये वैन आती है तो मैंने सारों को कहा जो सबसे तेज भाग सकता है ना अब यहाँ से भाग जाए। कहा तो था, मैंने कहा सबसे तेज कौन भागेगा। हाँ, ये अपराध भी है, हाँ, लेकिन कहीं नहीं भाग सकेंगे। फिट नहीं है। मैंने कहा तेजी से भागना, क्योंकि वैन आ गई है, वो दरवाजा खुलता है, वो फिर मारते हैं इन्हें और वैन में भर देता है। मैडम गैर कानूनी चीज़ है। डिजिटल मीडिया के साथ जो हो रहा है, उनके मोबाइल छीने गए हैं, लोगों को साफी अभी भी बहुत सारे खौफ से चले गए हैं कि उनको कवरेज नहीं करी, उनको धमकी दी गई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? वो आपको दिखाते देखिए, हैं, आपका ये आवाज़ मैं बनते हैं। आपको बताती हूँ, जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, सहाफ़ियों को उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था। चीज़ें फिर बद से बदतरीन होती जाएंगी, और आपने आज तो उन्होंने आपको आपस में लड़ाने की कोशिश किया है कि अगर डिजिटल मीडिया तो फ़ोन छीन लो, क्योंकि दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन बेचारों को कंट्रोल किया हुआ, उनकी मजबूरी है, आपको समझना चाहिए। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है,
उस पे कंट्रोल नहीं है, उनके फ़ोन तोड़ दिए। तो अगर आप लोग आज आप आपस में इकट्ठे नहीं खड़े हो गए, एक चैनल वाला कहेगा मुझे तो ये ऑर्डर आया है, तो और क्योंकि आप अपनी रोज़ी डिजिटल मीडिया से कमा रहे हो, वो कहेगा मुझे अपनी रोज़ी की मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है डिजिटल मीडिया पे। तो अगर आप आपस में इकट्ठे, आप दोनों की एक ही जिम्मेदारी है, सनसनीखेज नहीं बनना, आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ये दुनिया के मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी आप अपने मीडिया के वो जो कॉम्पोनेंट्स पढ़े ना इंटरनेशनल, वो ज़रा कभी पढ़ के देखना, और उसमें क्या जिम्मेदारियां दी हुई हैं। इंटरनेशनल नेशनल एक जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर उसको तोड़ेंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों की खुद ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप आपस में इकट्ठे रहें, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। रिस्क अल्लाह देगा, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत आप लोगों के भी हाथ में है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, ये अलीमा खान साहबा गुफ्तगू कर रही थी। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहजा की है कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी, और हम यहाँ पर जो है वो धरना देकर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। यहाँ पर खान साहब की वो मजीद दोनों बहनें नौरीन खानम और उज़मा आपा, वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ख़वातीन की एक भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप मुलाहजा कर सकते हैं ये सूरत हाल उनकी इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ये सूरत हाल आपको अडियाला जेल की दिखा रहा हूँ। अडियाला जेल में आपकी जो है वो सूरत हाल है वो आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन कराम, मजीद आपको जो है वो अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, हम देखेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हम इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त शाम के तकरीबन 7 बजने को हैं और यहाँ पर पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग भी आप जो है वो मुलाहजा कर सकते हैं। और इस साइड पे अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर जो है वो पंजाब पुलिस इस वक्त जो है वो पहुँच चुकी है और अडियाला जेल की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। ख़वातीन भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अडियाला जेल की सूरत हाल से आपको जो है वो आगाह कर रहा हूँ इस वक्त। ये सूरत हाल है अडियाला जेल की। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर अपने खान साहब की रिहाई के लिए। आज मुलाकात का दिन था खान साहब के साथ उनकी बहनों का, लेकिन वो भी नहीं कराई गई। हम इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अजला से आज यहाँ पे लोगों को बुलाया, अहदेदारान को बुलाया, तंजीमी जो वर्कर हैं मेन अहदों पे उनको बुलाया है, MNAs MPs को बुलाया है और बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। और हमारा यही मुतालबा है कि सबसे पहले तो खान साहब की बहनों की जो मुलाकात है उसको ऑफिशियली ओपन किया जाए इमरान खान साहब के साथ, ताकि उनकी जो सेहत के हवाले से जो शक व शुबात पाए जाते हैं या जो भी उनके कंसर्न मामलात हैं वो ताकि मीडिया के सामने आ सकें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या चाहे प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके भी थ्रू। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पिछले दिनों एक बात निकली थी कि खान साहब के दांत में बहुत शदीद दर्द है और उसको नोटिस किया अलीमा आपा साहिबा ने मीडिया पे, और उसके बाद भी अब तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली जो मेडिकल बोर्ड है वो नहीं तश्कील दिया गया जिसकी बिना पे उनका इलाज किया जा सके। जैसा कि सबको पता है कि जेलों में कोई भी डेंटिस्ट का बोर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी डेटाई की ये हद है कि खान साहब आज भी उस दर्द और तकलीफ़ में होंगे। और इवन के उनको अभी तक किसी मेडिकल बोर्ड की रसाई नहीं दी गई, पर्सनल मेडिकल ऑफिसर की भी रसाई नहीं दी गई।